بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Indeed, we sent the Quran down during the night of decree. وما أدراك ما ليلة القدر. And what can make you know what is the night of decree? ليلة القدر خير من ألف شهر. The night of decree is better than 1,000 months. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. سلام هي حتى مطلع الفجر. Peace it is until the emergence of dawn. बढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है, इस मुल्क की खातिर हमें सब कुछ करना है। मुझे अपने हुनर पे है अब जो चाहूँ पाऊंगा जरूर, करता हूँ मोहब्बत इल्म से, उस्तादों पे है मुझे गरूर। The Smart School, the Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, the Smart School, हम सबका स्कूल है। The Smart School, the Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, the Smart School, हम सबका स्कूल है। For admissions, visit the Smart School near you or visit www.thesmartschools.edu.pk. The Smart School, a project of the City School. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue.
If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. I am your teacher Miss तहरीन सलीम कसीरी। एसएसटी का 5th सेशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाए और कुछ काम भी करना है आपको, जो असाइनमेंट दिया था वो भी, और रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं अब। स्मार्ट सोशल स्टडीज़ क्लास 5। तो स्टार्ट लेते हैं। पहले आपका जो असाइनमेंट था उससे, कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो आपने किया है या नहीं, अगर किया है तो सही किया है या नहीं। तो वहाँ पे जाते हैं, ओपन योर बुक, पेज नंबर 10 एंड पिक योर पेंसिल पिक कर लें आप लोग, ठीक है। स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेंसिल से टिक लगाना है अपने यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, प्राइम मेरिडियन पे, आर्टिक सर्कल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, एंटार्क्टिक सर्कल्स, ठीक है। ये टिक लगाने के बाद आपने हाथ में एक रूलर ले लें। रूलर के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे 0 मेरिडियन पे, ठीक है। 0 डिग्री पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद एक यहाँ एंगल दिया हुआ है, इस एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन 30 पे, 60 पे, यहाँ से जितने भी एंगल्स हैं आपको 1 बाय 1 ये लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको राइट करवाती हूँ कि कौन सा किस पे आएगा। तो आई होप आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली होगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा आपका 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री पे आपने लिखना है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। आपको बताते हैं कि प्राइम मेरिडियन का एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है प्राइम मेरिडियन, ओके। इसके बाद लेंगे यहाँ 60 के एंगल पे, 60 के एंगल पे आपको लिखना, ओके। अब यहाँ पे आपने लिखना है आर्टिक सर्कल, ठीक है। आर्टिक की स्पेलिंग क्या है, ARC, आर्क, ARCTIC, आर्टिक, CIRCLE, सर्कल, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आपने लिखना है ट्रॉपिक, ठीक है। तो पूरा इस लाइन में नहीं आएगा, तो नीचे आप लिखेंगे इसके बाद TROPIC, ट्रॉपिक, OF, ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ, और नीचे आप लिख लें कैंसर, CANCER, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आपने यहाँ लिखना है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर की स्पेलिंग है EQUATOR, इक्वेटर। इसके बाद आपने लिखना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने, ये भी बहुत बड़ी स्पेलिंग है, तो ट्रॉपिक ऑफ ऊपर लिख देंगे TROPICOF, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CEPRI, कैप्री। इसके बाद लिखना है कॉर्न, CORN, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लास्ट हमारे पास रह गया है, लास्ट में आपने क्या लिखना है, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ANTARC, एंटार्क्टिक, CIC, एंटार्क्टिक, TIC, सर्कल, CIRCLE, सर्कल, ठीक है। तो ये आपका काम है, यहाँ पे एंड हुआ जो आपको मैंने होमवर्क दिया था। आई होप आपने भी ऐसे ही किया होगा। तो हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, स्टार्ट देते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। सेकंड चैप्टर का नेम है पाकिस्तान एंड इट्स नेबर। नेबर कहते हैं पड़ोसी को, ठीक है। तो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के बारे में यहाँ बात की जाएगी और पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले इनकी कीवर्ड्स को रीड करते हैं। डेंसली, क्लोजली, ठीक है, मतलब करीबी। कम्युनिज्म, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच वेल्थ
इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग सिटीजन। ठीक है, वेल्थ यहाँ पे पैसे को कहेंगे। ठीक है, वेल्थ है तो यहाँ पे सिटीज़न मतलब जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस है और पॉलिटिकल कंडीशंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी किसके अंदर, आपके शहरों में। ये कम्युनिज्म का मतलब है। वाइब्रेंस, शोइंग लाइफ एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ को अच्छे से खुशगवार शो करना है। डिमार्केटेड, सेट द बाउंड्रीज और लिमिट्स, मतलब अपनी हदूद बतानी है, लिमिट्स बतानी है कि कितनी है। इसके बाद है बैरियर, अब फेंस, फेंस कहते हैं जंगले को या फिर पिंजरा या जंगले को कहेंगे। ठीक है, और एनी अदर ऑब्स्टिकल डेट प्रिवेंट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब ये ऐसी जगह जहाँ से आपकी मूवमेंट को रोका जा सके। प्रिवेंट्स मतलब रोकना, एक जगह से दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह मूव ना किया जा सके। ओके, तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद स्टार्ट ले रही हूँ मैं रीडिंग का। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड इट्स अ लिंक between Central Asia and Middle East. Pakistan is surrounded by land from three sides and ocean on the fourth. It shares a border with India in the east, Afghanistan and Iran in the west, and China is situated at the northwest, whereas Arabian Sea lies in the south. तो इसमें ये बताया कि पाकिस्तान आपका जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो किस में, साउथ एशिया की तरफ है और वे दो के दरमियान लिंक करता है, सेंट्रल एशिया के दरमियान और मिडल ईस्ट के दरमियान। इसके अलावा पाकिस्तान फैला हुआ है 4 ऐसी जगहों पे जहाँ पे 3 हिस्से में क्या है, आपकी लैंड है और ज़मीन है, और चौथे हिस्से में आपका ओशन मतलब समंदर है। ठीक है, इट शेयर अ बॉर्डर विद इंडिया, इसके अलावा ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। इसकी बॉर्डर एक पाकिस्तान की बॉर्डर इंडिया तक जाती है जो कौन सी डायरेक्शन में, आपकी ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ है, और अफ़गानिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर आपकी मिलती है वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। इसके अलावा एंड चाइना इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न साइड, और आपका जो चाइना की जो बॉर्डर आपको जाएगी वो किस तरफ से जाएगी, नॉर्दर्न साइड की तरफ। वेयर एज अरेबियन सी इज़ लाइज इन साउथ। देखें ये मैप है, इस मैप में आप इस पैराग्राफ में बताया गया था कि आपका जो ईरान और अफ़गानिस्तान है वो किस में, वेस्ट साइड पे। तो ये देखें ये ईरान है और ये अफ़गानिस्तान आपके वेस्ट साइड पर है। इसके अलावा चाइना आपको बताते हैं कि चाइना नॉर्दर्न साइड पे, तो ये रहा आपका चाइना। आपका इंडिया बताया गया था कि इंडिया आपकी ईस्ट की तरफ है, तो ये ईस्ट आपका है। ठीक है, तो इस तरह ये मैप में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी कंट्री की लोकेशन किस तरफ है। तो और पाकिस्तान का ये मैप है, ये जो रेड कलर में आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ से, ये पूरा किसका मैप है, पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान। ओके, और जहाँ पे हम रहते हैं कराची। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग में है पाकिस्तान चाइना। ये चाइना का फ्लैग है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्लैग का कलर किस तरह होता है, ग्रीन एंड वाइट। ओके, तो हम फ़िलहाल चाइना पे जा रहे हैं। चाइना की हेडिंग है पाकिस्तान एंड चाइना। स्टार्ट ले रही हूँ। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। द फेमस कराकोरम माउंटेन रेंज एक्ट एज अ natural border between two countries. The border was demarcated in an agreement between the two countries called the Sino-Pakistan Frontier Agreement in 1963. China is officially known as the People's Republic of China. It has the largest population in the world and it is the 4th largest country by area. The capital city is Beijing, while Guangzhou is the most densely populated city of China. ओके, यहाँ पे अब मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको करके बता रही हूँ कि क्या है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं हम। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना सिचुएटेड इन द नॉर्थन ऑफ पाकिस्तान। ये मैप आपको दिख रहा है। इस मैप में आपका जो डायरेक्शन है नॉर्थन की, तो वो पाकिस्तान और चाइना की। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैप है, ठीक है, यहाँ पे चाइना की बॉर्डर है और यहाँ से पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर मिलती है। इसके बाद द फेमस कराकोरम माउंटेन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज़। जो आपका फेमस कराकोरम जो माउंटेन है, जो आप बहुत ज़्यादा फेमस जो मशहूर हुआ है कराकोरम माउंटेन, ठीक है, इसकी जो बॉर्डर मिलती है वो भी 2 कंट्रीज़ से बॉर्डर मिलती है। द बॉर्डर वॉज डिमार्केटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़। इसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था डिमार्केटेड, ठीक है, उस
वो जो दो कंट्रीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है सीनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट, जो 1963 में इस एग्रीमेंट को मुकर्रर किया गया था। चाइना इज़ ऑफिशियली नोन एज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना को कानूनी तौर पे क्या कहा जाता है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। इट हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसकी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन को कहा जाता है आबादी, ठीक है। आबादी किससे बढ़ती है? लोगों से आबादी बढ़ती है, इसलिए पॉपुलेशन क्या कहेंगे? आबादी को कहेंगे। इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया, और इसके अलावा ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री आपकी एरिया के लिहाज से, एरिया मतलब रुकबा और जगह के लिहाज से। द कैपिटल सिटी इज़ बुजेन, वाइल द गोंगजू इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ चाइना। चाइना का जो कैपिटल सिटी है उसे बेजिंग कहा जाता है, और जो गोंगजू है वो क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है किसमें? इसके दूसरे गोंगजू में। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। द रेड इन द चाइनीज़ फ्लैग सिम्बोलाइज्ड द कम्युनिज्म revolution and it's also the traditional color of pupil. The large gold star represent communism. The four smaller star represent the social classes of the pupil. In addition, the 5 star together reflect the importance of the number 5 in Chinese thought and the history, which is associated with the 5 element: water, fire, earth, wood and metal. तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेड इन द चाइनीज़ फ्लैग सिम्बोलाइज इज़ द कम्युनिस्ट, ठीक है। जो यहाँ पे रेड कलर है चाइना के फ्लैग का, तो वो क्या सिम्बोलाइज हुआ हुआ है? इसलिए कि वो कम्युनिज़म किसे कहते हैं? कम्युनिज़म कहा जाता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के जो आपकी सिटी में डिवाइड किया जाए वेल्थ को इक्वली तौर पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड इट हैज़ आल्सो ट्रेडिशनल कलर ऑफ द पीपल, और इसके अलावा इसका ट्रेडिशनल कलर है उसके लोगों के मिला के। द लार्ज गोल्ड स्टार रिप्रेजेंट कम्युनिज़म, जो इसका लार्ज जो बड़ा स्टार है ये वाला, ठीक है, इस लार्ज स्टार को कहा जाता है कम्युनिज़म को शो कर रहा है। कम्युनिज़म के बारे में भी मैंने आपको बताया। द 4 स्मॉलर स्टार रिप्रेजेंट द सोशल क्लासेस ऑफ द पीपल, और इसके अलावा जो 4 स्मॉलर स्टार हैं वो उसकी सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन एडिशन द 5 स्टार टुगेदर रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर 5 इन चाइनीज़ थॉट एंड हिस्ट्री विच एसोसिएटेड विद द 5 एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो इसका 5वां बड़ा स्टार है वो इस चीज़ की अलामत है, इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो 5 एलिमेंट्स है, कौन से 5 एलिमेंट्स है? वाटर, फायर, अर्थ, वुड एंड मेटल, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स आपके टोटल 5 स्टार्स को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है कि द करेंसी यूज्ड इन चाइना इज़ yuan एंड renminbi, वेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ मैंड्रिन चाइनीज़। द पीपल ऑफ चाइना आर नॉन एज चाइनीज़। चाइना में जो करेंसी इस्तेमाल हो रही है उसे यॉन कहा जाता है, और जो वहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे मैंड्रिन चाइनीज़ कहा जाता है। इसके अलावा द पीपल ऑफ चाइना आर नॉन एज चाइनीज़, और चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज़ कहा जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी कहा जाता है, इसी तरह चाइना में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ करेंसी शो की गई है चाइना की। ये देखें, ये 100 का नोट है और ये 50 का नोट, ये चाइना की करेंसी है। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट के। द फेमस जायंट पांडा इज़ द फाउंड नियर द यंगस्टी रिवर इन चाइना, ठीक है। ये जो पांडा है ये आपके पास चाइना के, ठीक है, इस पांडे का नाम है जायंट पांडा, ठीक है। जो चाइना के फेमस रिवर है वहाँ पे ये फाउंड किया जाता है, नज़र आता है। इसके बाद है ये द फॉरबिडन सिटी इन द बीजिंग, इट वॉज द इम्पीरियल पैलेस फॉर 24 imperial. It was forbidden to enter without special permission of the emperor. Hence is called the forbidden city, ठीक है। अच्छा, ये forbidden city in the Beijing, it was the imperial palace for 24 imperial. forbidden city में एक द फॉरबिडन सिटी इन बीजिंग में एक सिटी जिसका नाम क्या है? फॉरबिडन। इट वॉज द इम्पीरियल पैलेस, जो क्या था? इम्पीरियल पैलेस है फॉर 24 इम्पीरियर, जिसमें कितने इम्पीरियर्स थे? 24 इम्पीरियर्स थे। इट वॉज द फॉरबिडन टू एंटर विदाउट स्पेशल परमिशन, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए आपको एक ख़ास तरह की परमिशन की ज़रूरत होती है। हैंस इज़ कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी, तो तभी इस सिटी को क्या कहा जाता है? फॉरबिडन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपनी क्लास का आज के सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो इस रीडिंग हुई है।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो बस मेरा छोटा सा काम ये है आपकी इस क्लास का कि आप एक काम कीजिएगा इसमें कि जो हेडिंग है, हेडिंग अपनी कॉपी में लाजमी मेंशन कीजिएगा और 2 फ्लैग लाजमी बना दीजिएगा हेडिंग के साथ सामने वाले पेज पे, पाकिस्तान का फ्लैग और पाकिस्तान और चाइना का फ्लैग, ठीक है। इन दोनों के फ्लैग लाजमी अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा। तो आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। पाकिस्तान एंड इट्स नेबर सेकंड चैप्टर था हमारा, और जो आपको मैंने काम भी करवाया वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो चैप्टर में था कि चाइना के बारे में जिस तरह से हमने रीड किया है और मैंने आपको समझाया है, इसकी करेंसी के बारे में, इसके एरिया के बारे में, और ये इनके जो 2 कंट्रीज़ लो थे वो भी, तो सब समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।